So now today we are going to start the chapter which is officially the part of the syllabus as well as the NCRT also. So now you'll start seeing that कि these are the chapters which will be appearing in your NCRT directly. But अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म और जीओसी, ऐसा अलग से कोई चैप्टर एनसीईआरटी में यू विल नॉट फाइंड. बट obviously whatever we have learned now we are going to apply that in the different chapters which you are going to cover in the organic chemistry remaining portion of the organic chemistry, है ना. सो ऐसा नहीं कि दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर, अलग से कुछ आने वाला है. ऑब्वियसली देयर विल बी सम रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी स्पेसिफिकली टॉट इन दिस चैप्टर, बट जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स इन एवरी चैप्टर नाउ. तो ऑर्गेनिक इज लाइक वेन एवर यू आर रिवाइजिंग इट ना, यू हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म्स टू दैट चैप्टर, है ना. तो वट एवर वी हैव लर्न सो फार ना, वो भी इस चैप्टर का पार्ट मान के चलो. ठीक है, तो उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर यूज होंगी, कुछ चीजें नहीं भी यूज होंगी. तो बट रिमेनिंग पोर्शन जितना भी है उसमें कहीं ना कहीं से जो भी पढ़ा हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज. तो फ्यू फ्यू सेक्शंस विल बी देयर जो मैं सीधा मेंशन कर दूंगा यहाँ पर कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट, तो यू हैव टू रिवाइज दैट फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल बी स्टार्टिंग विद द अल्केन. हाइड्रोकार्बन में वी नो दैट कि वी हैव टू लर्न अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अल्केन आई विल बी teaching you separately because it is a totally saturated molecule, तो उसके रिएक्शंस अलग होते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन एंड अल्काइन, तो वहां पर देखोगे देयर इज अनसैचुरेशन. प्रिपरेशन मेथड तो ठीक है, मैं अलग अलग से पढ़ा दूंगा. बट व्हेन विल बी गोइंग टू रिएक्शन वाला पार्ट ना, वी आर गोइंग टू लर्न अल्कीन एंड अल्काइन टुगेदर, है ना. तो जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस होंगे वो अलग से मैं बता दूंगा, बट अदरवाइज alkene and alkyne की properties we are going to learn together, and in every chapter we'll be having the pattern that we'll be understanding first the preparation, then we are going to talk about property. Preparation का मतलब what are the chemical reactions by which we are going to prepare the reactants, and then properties में what are the reactions for, which will be happening with the these compounds as substrate, है ना. तो these things we are going to cover today, है ना. तो अभी हम लोग अल्केन से स्टार्ट करेंगे. ईशान, स्विच ऑन योर कैमरा. उदयन. Okay, so now when we are talking about alkane, सबसे पहले we'll be starting with the preparation of alkane. The first method itself is very important, which is called Urge reaction. So when we are talking about Urge reaction, reaction क्या है पहले देख लो, and then we'll talk about the different part. देखो हमेशा क्या होगा ना, we'll be having a reaction जिसमें we'll be having substrate, reagent and the products. Then we'll be talking about कि जहां पर जो भी conceptual relevance का question रहेगा, that may also be asked. So like if you see the Urge reaction, we have got a haloalkane. Now when we are talking about haloalkane, तो ये एक reaction हो गया haloalkane का, है ना. It is preparation of alkane, but it is also property of haloalkane, है ना. तो reaction is simple. RX के दो molecules मिलके XR लिखा है just to identify that कि these are going to form the salt, and then R and R will be connected with that. So reaction is simple. We are going to have RX के two molecules plus 2 sodium in dry ether, and that is going to give you RR plus 2 NaX. Okay. Now, there are few questions which are conceptual. First question, why solvent is any solvent? Why we are using any solvent? To increase the effective collision frequency so that the reaction rate is becoming better. In solvent, the substrate and the reagents are going to be stabilized, and that's why they are getting more chance to collide with each other effectively, and that's why we'll be having a better rate of reaction. तो कोई भी solvent in general किसी भी reaction में why we are using, to increase the effective collision frequency. Second point, why we are using ether here? So ether can stabilize the metal cation when we'll be going to mechanism ना, तो sodium is going to form sodium plus. देखो ना यहाँ sodium है, यहाँ पे we have got Na plus and Cx minus, है ना. तो whatever products are being formed, they are going to be stabilized in this ether, and that's why we are using ether, है ना. Now the question is, can we use ether which is not dry? That means water is there. So water, if water is there, it will start reacting with the sodium itself, and that's why we don't have to use the one. So we don't have to use the water at all, because if water is there, sodium will be reacting with water to form NaOH plus H2 निकल आएगा ना, plus H2 निकल आएगा. So that will be the reaction in presence of water, and that's why we don't want water in the reaction, because जिसको RX से रिएक्शन करना है वो वाटर के साथ ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वी डोंट हैव टू यूज द वाटर, है ना. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर. नाउ कैन वी यूज सोडियम की जगह कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक पोटेशियम, कैल्शियम?
ये सब यूज कर सकते हैं, यस वी कैन यूज दैट. Urs used sodium and that's why in Urs reaction we are mentioning sodium, but they may mention potassium or calcium, the product will still be same. है ना. तो किसी ने अगर बोल दिया व्हाट विल बी द रिएक्शन इफ आई एम हैविंग दिस प्लस, मान लो यहाँ कैल्शियम ले लिया है, एंड इफ इट इज राइटिंग ड्राई ईथर ना, स्टिल इट इज ओके, यू कैन हैव द प्रोडक्ट लाइक आर आर बन जाएगा, एंड प्लस यू विल बी गेटिंग CaX2. और किसी ने बोल दिया 2RX प्लस पोटेशियम ले लिया, again you can have that same reaction, but when we are calling this Urge reaction ना, it is a name reaction, तो उस साइंटिस्ट ने क्या यूज किया, तो he used sodium and that's why we are going to say that कि वहां पे हम लोगों ने सोडियम यूज किया है. बट टेक्निकली इवन इफ आई एम यूजिंग पोटेशियम कैल्शियम ये सब चीजें यूज कर रहे हैं ना, स्टिल विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट एंड द सेम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. इज इट ओके? तो these are the conceptual question related to this reaction. Now we'll be talking about the mechanism. दो तरह के mechanism दिए जाते हैं. One is ionic mechanism, another is free radical mechanism. दोनों रिएक्शन, दोनों mechanism में दिखा देता हूँ. Not very important, कहाँ काम आएगा वो मैं बता दूंगा, but normally I'll show you what is the mechanism of it. Whenever mechanism will become important part, we'll be having the discussion. सिंपल सी कहानी है, सोडियम ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर Na+ बना रहा है, इट इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. C2H5Br in presence of Na is going to give you this. ये तो पूरा डायरेक्ट वाला हो गया. स्टेप वाइज जाते हैं. तो स्टेप 1 में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. स्टेप 1 में वी आर गेटिंग सोडियम से सोडियम प्लस एंड दिस इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, and that electron is attacking over this and that's why this is forming this anion plus Br minus निकल जा रहा है. and then ये जो anion आया है उसके साथ ये Na+, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, even if you are writing that ना तो चलेगा. and this anion is going to attack over the another molecule to release this one and that's how we are attaching these two molecules, है ना. तो ये Rx से चले थे और RR पे पहुंच गया ना. is it okay? तो this is ionic mechanism, not very important. दूसरा मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. बोथ ऑफ देम आर प्रपोज्ड बट इफ नथिंग इज गिवन ना तो विल बी फॉलोइंग नॉर्मली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इफ यू आर हैविंग दिस वन, अभी लास्ट टाइम देखो मैंने 2 सोडियम लेकर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, एंड दैट्स व्हाई इट वाज फॉर्मिंग एन आयन. दिस इज कार्बन आयन है ना. बट नाउ in free radical mechanism we just release 1 electron and that's why 1 electron is going to produce free radical. This is free radical, yeah, dot है. And then that free radical, these type of 2 free radicals are getting combined to form this again. देखो R R हो गया ना. Is it okay? तो if nothing is given, we are going to follow this free radical mechanism क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे. Now यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है. If I have got this free radical form and if I can get somewhere H dot जैसी कुछ चीजें मिल जाए तो फिर वहां पर अल्केन भी बन सकता था, है ना. तो दैट्स अनदर पार्ट. एक और कहानी है. इफ आई गिव यू तो एक पॉइंट जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ. अल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कह रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पर अपने पास CH3 डॉट ये डॉट था. यहाँ पे अगर सेम मॉलिक्यूल मिल गया इसको, we are writing CH2 dot CH3, then we are getting alkane. Obviously I was talking about alkene that time, so this will be like this. तो ये तो alkane बन गया. But what I'm saying that कि if I'm having small amount of alkene also formed, why? Because this dot will be released and this will release H dot, so that's how we can also get CH2 double bond CH2. So that's why we are saying that a small amount of alkene can also be formed. But there is one more reaction which is important. Again, you need to see that. एक reaction में दे रहा हूँ and this is important. This one. Now, if you see this one, ना, इसमें we are getting alkane as well as alkene. So this is important because इसमें थोड़ा mechanism में जाते हैं and then that's why I told you कि whenever mechanism will be required, we'll talk about that. देखो same चीज है. We have got alkyl halide, but now if you see this is tertiary alkyl halide, है ना. 3 degree RBR है. Now, if 3 degree RBR is there, we are getting an alkene and we are getting a 3 degree alkane वाला tertiary alkane है ये. So this is alkane. Now if you see this one ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे we are getting disproportionation.
व्हेन इट इज फॉर्मिंग दिस, यहां से यहां, इसको बोलते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट हो गया, एंड ये वाला जो है दिस इज रिडक्शन वाला पॉइंट हो गया, बिकॉज व्हेन सी इज कनेक्टेड टू एच, सी विल बी गेटिंग -1 है ना, बिकॉज सी इज कंसिडर टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच है ना। तो व्हेन बी आर की जगह एच आ गया, तो वो उसको जो बी आर +1 दे रहा था, एच विल बी गिविंग इट -1, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू से दैट ये रिडक्शन वाला प्रोडक्ट इज अल्केन एंड ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट इज अल्कीन। इज इट ओके? एनी डाउट? नाउ तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसका अगर मैकेनिज्म पूछ लिया जाए ना, how to write this mechanism, again यहाँ पे mechanism will be important because you need to understand that कि ये बना कैसे। अभी तक तो रट्टा मारा, आर एक्स है तो आर आर बन गया था ना, बट यहाँ पर देखो आर आर नहीं बना है, that's why we need to know the mechanism. So here obviously you will be getting that free radical which is, तो एक तो मैंने बोला like we have sodium, it will be giving you sodium plus electron, and now we have got, this time we have got a tertiary haloalkane, so we are getting CBr, then we have got CH3, CH3 and CH3, and now this electron is going to attack over it, and this will be forming this free radical here, and then plus Br dot निकल आएगा। Is it okay? Br माइनस हो जाएगा यहाँ पे, we got that extra charge. Any doubt? Now once we have got this is 3 degree free radical है ना, and that's why it has got more tendency to release H dot from it. That means elimination will be the primary tendency of it, and that's why we are going to say that ये जो C dot है ना, यहाँ पे एक CH3 को I am writing it like this, and we have got 2 more CH3 attached to it, and then we'll say यहाँ से this is going to release this H dot, so we are getting CH3, C double bond CH2 and here CH3 plus ये जो H dot निकला है ना, this will be going to another free radical which is formed during the reaction. So we have got C पे dot and we have got CH3, CH3 and CH3, and then this will be forming that alkane जिसकी बात मैंने की थी अभी। So we have got C पे H and then CH3, CH3 and CH3. So these are the products we have obtained from that 3 degree haloalkane. So whenever they are giving you 3 degree haloalkane, just be careful. Will not be getting RR because क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 3 डिग्री इस पे वापस से जो अटैक करता था ना, ये जो मैकेनिज्म देखो यहाँ पे, जब ये वापस दूसरे वाले पे अटैक करेगा ना, तो वहां पर इट विल बी हाईली क्राउडेड, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग इन दैट जोन, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पे आर आर बनने की जगह आर में से एलिमिनेशन होके इट विल बी फॉर्मिंग अल्कीन, एंड देन दैट अल्कीन इज गोइंग टू हैव रिलीज ऑफ एच डॉट विच इज गोइंग टू फॉर्म द अल्कीन वाला पार्ट। इज इट ओके? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो, तो ये दिस वाज स्पेशल केस, तो ये स्पेशल केस हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या बनते हैं, तो वन थिंग ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वी कैन यूज पोटेशियम और कैल्शियम इन प्लेस ऑफ सोडियम। उर्ज नाम के साइंटिस्ट ने सोडियम यूज किया था, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सोडियम, बट वी कैन यूज टेक्निकली पोटेशियम और कैल्शियम। इसके अलावा वी कैन हैव सम मेटल्स विच आर आल्सो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट दे नीड टू बी used in the acidic medium, like if I am trying to use Zn, जिंक भी यूज कर सकते हैं, बट जिंक के साथ अपने को CH3COH या HCl यूज करना पड़ेगा। वैसे टिन यूज कर सकते हैं, बट टिन के साथ HCl अगेन यूज करना पड़ेगा। सो इवन इफ दे आर गिविंग यू reagents like tin HCl और जिंक CH3COH, it will be having the same reaction। तो यहाँ पे बट लाइक आई टोल्ड यू, जिंक सिंपल नहीं, एक तो जिंक डस्ट लिखा हुआ रहेगा सो दैट इट्स एक्टिविटी इज बेटर, एंड उसके साथ साथ दे विल बी गिविंग यू CH3COH, या टिन दे दिया, टिन के साथ HCl दे दिया, तो दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी these are also acting as the similar manner, like सोडियम जो यूज हो रहा था उसी तरीके से वी आर गोइंग टू हैव द यूज ऑफ जिंक एसिटिक एसिड और टिन HCl ऑल्सो, दैट्स वन पार्ट।
दूसरा पार्ट है इफ आई एम हैविंग सिमेट्रिकल, देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा था, प्रोडक्ट वाज आर आर है ना, विच इज अ सिमेट्रिकल अल्केन, जो पोर्शन यहाँ है वही पोर्शन यहाँ है। बट इफ आई एम हैविंग एन अनसिमेट्रिकल अल्केन, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपेन, प्रोपेन को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते आइडेंटिकल पार्ट्स में ना, इट हैज टू बी वन मिथाइल एंड वन इथाइल, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। एंड दैट्स व्हाई इफ आई वांट टू यूज उस रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, मुझे एक CH3X लेना होगा, एक ETX लेना पड़ेगा, CH3CH2X है ना। द मोमेंट आई एम गेटिंग दैट ना, तो फिर यू विल स्टार्ट गेटिंग मल्टीपल अल्केन्स है ना, CH3CH3 भी बनेगा, CH3CH2CH2CH3 भी बनेगा, दैट मीन्स ET भी कनेक्ट होगा, फिर CH3 एंड ET कनेक्ट होगा, तो दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग मल्टीपल अल्केन्स, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर ऑल दोज अल्केन्स which are not symmetrical. जैसे आई हैव गिवन यू एग्जांपल, इफ आई हैव टू प्रिपेयर प्रोपेन ना, तो प्रोपेन के लिए अपने को CH3X भी चाहिए और C2H5X भी चाहिए है ना। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट, आई एम गेटिंग एन अर्जेंट कॉल। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, इफ आई हैव टू प्रिपेयर द प्रोपेन, तो देखो यहाँ पर इफ आई एम यूजिंग दिस वन एंड दिस वन, देखो इसका खुद का इट विल बी गिविंग यू CH3CH3, दैट मीन्स आई एम गेटिंग इथेन। इसका खुद का आई एम गोइंग टू गेट ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3, एंड देन जो क्रॉस उस रिएक्शन होगा वहां से वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोपेन है ना। So that's why we are going to get multiple products, and that's why we are saying that Wood's reaction is appropriate only for symmetrical alkane. Is it okay? So if I have to prepare ethane, that's okay. Butane, it is okay. Hexane, that is okay. But propane या फिर पेंटेन, ये सब प्रिपेयर करने के लिए CH4 तो बना ही नहीं पाएंगे, but उसके आगे भी if I am not having the symmetrical alkane, this method is not good to prepare those kind of alkanes. Now if I ask you 1 2 questions, हाँ उसमें जाने से पहले I'll just give you one more point. There was another scientist जिनका नाम था फ्रैंकलैंड। उन्होंने कहा ठीक है, उसने सोडियम यूज किया, आई बी यूजिंग जेड एंड डस्ट, जिसकी बात अभी जस्ट मैंने की थी, यू कैन ऑल्सो यूज जेड एंड डस्ट, दैट वाज यूज्ड बाय अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंकलैंड। तो फ्रैंकलैंड वाले रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोल दिया, तो अलग से नाम आ गया, बट द बेसिस इज सेम, वी आर यूजिंग जेड एंड डस्ट इन THF, THF इज ऑल्सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। देखो ये कैसा है, वी हैव गॉट दिस वन, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान विच इज ऑल्सो साइक्लिक ईथर है ना, दिस इज अ साइक्लिक ईथर, we have to use that, but like I told you, you need a better activity with the zinc because it is not that much electropositive, and that's why it is using zinc dust. Is it okay? So this can also be given to you as the reagent, और वहां से भी सेम रिएक्शन मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। तो थ्योरी भी सेम है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स भी सेम है, लिमिटेशन भी सेम है। लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन, दैट इट इज अप्रोप्रिएट ओनली फॉर द सिमेट्रिकल अल्केन, जिसके दो पार्ट आइडेंटिकल हो सकते हैं, उसके लिए लाइक आई एम टेलिंग यू, इथेन में, ब्यूटेन में, इन सब में वी कैन हैव आइडेंटिकल, एंड दैट्स व्हाई ऑल्सो रिमेंबर दैट टर्शरी में वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट अल्केन जो कि RR वाले फॉर्म में बनता था, वी आर गोइंग टू हैव वन अल्कीन एंड वन अल्केन विच इज डिफरेंट, इट इज नॉट सिमेट्रिकल वन, है ना। तो ये वाला भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि टर्शरी से क्या बन रहा है। आई एम गिविंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस नाउ, सो लाइक इफ आई गिव यू this question, these are having 4 options. Now if I ask you which of the following is are produced in significant or good yield through Urge reaction, what will be your answer? Okay, if you see, if you count now, again symmetrical का मतलब always remember that it will be even number not odd number। ऐसा लग रहा है कि यहां से मैंने हाफ कर दिया, इस कार्बन का क्या करेंगे फिर, you can't have A ऑप्शन। देखो ना इसमें क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आई नीड टू टेक एक 3 वाला लेना पड़ेगा, और एक हम लोगों को
दो वाला लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऑल्सो गेट, अगर ये दोनों लिया ना, प्लस सोडियम अगर लिया है, तो आई एम गोइंग टू गेट, एक तो ये मिल जाएगा 5 वाला, बट इसके साथ साथ आई विल बी गेटिंग 3 वाले से विल बी गेटिंग 6 वाला भी, एंड विल बी गेटिंग 4 वाला भी। We are going to get all of these, and that's why we'll reject it because it is not symmetrical. Symmetrical का मतलब ये नहीं कि there will be one central carbon जिसके around it is symmetrical. इसका मतलब है I can divide it into RR वाला form है ना, तो this is R and this is R, we can write that. इसमें we can't have that, we can have R and R dash मिलेगा यहाँ पे है ना, तो B will be the right option actually. C will not be the right option, कहीं से symmetrical नहीं बनने वाला है. What about D? D में भी आ सकता है ना, D में we are getting this one as R, this one as R. And that's why we can say that it will also be the answer. Is it okay? Any doubt? Ishan, clear na? Chalo, next question. Now I'm going to give you one alkane, and you have to tell me how many haloalkanes can be involved to prepare this one alkane. Maximum number बताना. If I'm trying to prepare this alkane, combination of how many alkyl chloride, that means haloalkane or chloroalkane, will be involved in the preparation of this alkane or can be involved, maximum number पूछा है. Obviously it is not symmetrical alkane है ना, so I need to take R and R dash. तो R and R dash के कितने combination ले सकते हैं? We have to consider all of those possibilities. If I break it here है ना, तो we are getting this one, this plus दूसरे साइड से we are getting this one है ना, दो कार्बन वाला, we have got 2 carbon, and that's why these two are going to give you one this, and other products will also be there. I'm not talking about good yield right now, but this will be one option. एक दूसरा option क्या हो सकता है? I can break it here, and then I can talk about that. We can have this one plus CS3Cl. Is it okay? So total number is coming 4. So total is 4. While reporting that, also take care of the stereochemistry है ना. तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स पूछ रहा है, तो यू नीड टू सी दैट की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी तुमको देखना पड़ेगा. दैट्स वन पार्ट. नाउ इफ आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आई गिव यू दिस वन. नाउ टेल मी अबाउट दिस. Report all the possible alkyl chlorides which can be involved in the preparation of this one alkane. Okay. Again, similarly, we need to break it at different points, है ना? So if I'm breaking at here, what kind of options I'm getting? I'll be getting this one, यहाँ पे Cl लगा दो plus CS3Cl. Okay. दूसरा है, if I'm breaking it here, then
actually I'm getting this Cl plus CS3CH2Cl. Okay, that is another case. Third case is if you see this one, so then I'll say we can break it air also. Then I'm going to get this one plus CS3Cl. Is it okay? Any other possibility? Okay, let's say up to this much. Now, इसमें मैंने बोला था you have to take care of the stereochemistry also. Now, if you see the first compound यहाँ पे we have got this one है ना. This is chiral carbon. So we can have two from here, one from here. यहाँ पे कोई chirality वगैरह नहीं है तो one from here, one from here. I'll reject it because I have already counted that है ना. I'll not count it. But we have got यहाँ पर देखो again we have got this one as chiral center है ना. तो अगेन वी कैन हैव आर एस दोनों वाले या डीएल दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई विल बी सेइंग कि यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू गेट टू एयर है ना. नाउ हाउ मेनी वी हैव गॉट. हैव आई रिपीटेड एनी केस? चलो अभी ये जब हो गया देन इसके बाद फिर नाउ इफ यू आइडेंटिफाई इट ना, आई थिंक दिस वन वाज हैविंग Cl एंड दिस इज सी. अच्छा नहीं, दिस इज नॉट कायरल कार्बन ना. This is not chiral carbon. We have got methyl and methyl, है ना. So this is one only. So now up to now we have got five, है ना. Now one more possibility which I told you, whenever you have got tertiary वाला case ना, we can have elimination का product also, and that's why if you remember हम लोगों ने ऐसा ही एक product बनाया था यहाँ पे which was having a tertiary carbon involved, and in that we have got a tertiary alkyl halide also involved, है ना. So that's why if I have to prepare that now, I can have another reactant which is actually, I can have another reactant which will be actually यहाँ पे Cl ले. ओके, अभी देखो यहाँ से क्या होने वाला था. वी नो दैट यहाँ से वी आर गोइंग टू गेट दिस डॉट which is going to give me two products actually. एक तो अल्कीन बनाएगा है ना, एक तो अल्कीन बन जाएगा यहाँ से. दैट्स वन. बट दूसरा इसी का जो H डॉट निकलता था दैट इज गोइंग टू गिव मी दिस प्रोडक्ट है ना. Is it okay? And that's why it is not again chiral, so we'll be counting it as also one. And that's why we are going to say कि यहाँ पे भी one हो गया. Now if you count it 1 2 3 4 5 6 and then 7, so the answer of this question will be actually 7 है ना. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव बीन गिवन अ हाइड्रोकार्बन जिसमें टर्शरी कार्बन भी प्रेजेंट है, देन वहां से वी हैव गॉट द पॉसिबिलिटी दैट कि वहां का अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली कैन गिव यू दैट अल्केन अगेन. इज इट ओके? एनी डाउट? सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो वो वाला किया उसमें सीएल के साथ एक और होना चाहिए ना? कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाला उसमें। ये वाला हाँ उसका फर्स्ट वाले में यहाँ पे लीनियर चेन वाले में एक और CH3 आना चाहिए। यहाँ देखो ना, दो लिया है ना. वी हैव गॉट ओ वन अच्छा कार्बन हाँ। टू कार्बन, वी हैव कवर्ड बोथ द कार्बन हेयर है ना. ओके। Okay, then ring is having one alkyl halide and this is CS3CH2Cl है ना. When I am taking one CS3, that another carbon I am taking here है ना. Okay यस। ना. Sure. Okay. So this was second question. Now I'm going to give you a series of CS3Cl in the second question. CS3Cl लिया है but it was twice है ना. तो if I'm counting the compounds तो I'll not be counting it two times है ना. That's why I'm taking one only है ना. Okay. Sure. Okay, now I'm going to give you a set of substrates जिसपे again we'll be having that same question की Na and dry ether use किया तो what are the products we are going to get, and I'll be giving you different kind of possibilities. Again ऐसा नहीं कि एकदम हर बार simple वाला ही रहेगा. So I'll be writing the question first. Find out major product
from following compounds when treated with sodium dry ether. Okay. Okay. First do this seven. Every time you have to use sodium dry ether. Try these questions. The point is you'll always be forming the free radical and then you will move ahead from there. है ना? तो जैसे फर्स्ट वाले में if I am forming the free radical after attack of electron coming from sodium when sodium is getting converted into sodium plus, I'll be getting CH3 CH2 dot है ना. और जैसे ये मिल गया इसी के दो मॉलिक्यूल से I'll be getting ब्यूटेन है ना, नॉर्मल ब्यूटेन. इज इट ओके? बट जैसे मैंने यहां गया ना, आई टोल्ड यू देयर ऑल्सो कि यू नीड टू बी केयरफुल. जैसे ये 3 डिग्री आ गया then it will not be associated with another molecule which is also 3 degree because बहुत ज्यादा steric crowding हो जाएगी and that's why this time it is going to have एक elimination हो जाता था. हम लोगों ने देखा था this will be formed and plus इसी का जो H निकलेगा वो दूसरे molecule पे जाके it is going to form that. है ना? H लिख दो या नहीं लिखो चलेगा. Is it okay? Next one we have got this one. इसका डॉट बनाया एंड देन इसी का दूसरा मॉलिक्यूल मिलके विल बी गेटिंग 2 डिग्री तक चलेगा बट 3 डिग्री पे नहीं चलेगा. तो दिस वाज 2 डिग्री तो यहां तक ये एसोसिएट कर सकता है. तो दिस विल बी फॉर्मिंग दिस वन ना. नाउ इन दिस केस इफ यू सी ना वी आर गेटिंग विद इन द मॉलिक्यूल वी आर गेटिंग 2 डॉट. नाउ वी कैन हैव टू चॉइसेस. एक हो सकता है मैं इंटर मॉलिक्यूलर में जाऊं, इसका वाला डॉट जो है दूसरे रिंग वाले डॉट के साथ अटैच करूं एंड अनदर केस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो केमिकल बॉन्डिंग से मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि वेन एवर यू हैव गॉट सच टाइप ऑफ चॉइसेस ना, when there is a process happening inter versus intra, the molecule will always be preferring first intra because intra में decrease in entropy will be less or there will be increase in entropy. है ना? दोनों केस हो रहे हैं. So that's why क्योंकि अगर मैंने इंटर किया तो 2 molecules are getting attached and that's why entropy is decreasing. But within one molecule if I am forming the bond entropy is not that much decreasing and that's why we are saying that कि यहाँ पे it will be preferring this molecule. Is it okay? तो important है क्योंकि different है, important है क्योंकि different है. Is it okay? Again next case we are getting यहाँ पे भी डॉट मिल रहा है, यहाँ पे भी डॉट मिल रहा है. The moment I am getting that I'll be having that choice कि inter या intra. तो again इस केस में भी will be getting intra only. So we'll be getting cyclohexane. Clear है? Now if you see this one again, if I am getting this one तो I am getting यहाँ पे देखो
पहली बात, इफ आई आस्क यू विच बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक, सीसीएल और सीबीआर? विच बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक? सीबीआर है ना, बीआर इज बिगर एटम, सो इट विल हैव वीकर बॉन्ड है ना, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा ना, if I have to use one dot na, so I'll be using that. So again, multiple products are going to be formed. But in this case, because it was difficult to break CCl bond, so it will be preferring कि ऐसे दो molecules जो है ना, ऐसे ही दो molecules मिलके they are going to form, एक यहाँ Cl, जैसे यहाँ पर Cl आया तो इसके डॉट से दूसरा वाला molecule connect किया, तो in this case we are going to prefer intermolecular association. Why? Because CCl को break करना will become difficult, तो दूसरे मॉलिक्यूल का Br इजिली ब्रेक होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन हैव दिस प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन, अगेन वी आर गोइंग टू गेट, अभी देखो आइडेंटिकल मिल रहा है तो फिर टेंशन नहीं है, वहां पर इंटर वर्सेस इंट्रा में हम लोग इंटर में चले जाते हैं. सो यहाँ पे एक डॉट यहाँ मिला, एक डॉट यहाँ मिला, इनको बॉन्ड इनको ज्वाइन कर दो. इफ आई एम ज्वाइनिंग इट, देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, तो 6 मेंबर्ड रिंग एक जगह बनेगा, तो 6 मेंबर्ड बना दिया. दूसरे तरफ भी इफ यू काउंट इट ना, ऑन द सेकेंड साइड ऑल्सो, इफ आई एम काउंटिंग इट फ्रॉम हेयर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी वी आर सेइंग दैट कि विल बी गेटिंग, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. इज इट ओके? देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ लोगे. तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगेन ऐसा नहीं कि एकदम जनरल वाला जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही एग्जैक्ट पूछेगा. यू कैन हैव वेरिएशंस लाइक दिस आल्सो. आई एम गिविंग यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन. अगेन 7 दिया, 7 और दे रहा हूं. दीज आर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. Anyone having any doubt in first 7 question? If you have doubt, just ask me. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेट पे चले जाते हैं. 8th वन, यहां से हर जगह कुछ ना कुछ अलग होने वाला है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दीज एग्जांपल्स. ओके, सो नाउ again we have got a choice. I'm breaking these two, so I'm getting dot over here, dot over here. Now again I am having two choices. One is कि I'm forming cyclobutane, that is one choice. Second choice कि इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे के 1 to 1 tail to head अटैच होता चला जाए, that can be another choice. Or third choice is the much easier choice, and that is forming the bond between these two itself. And that's why this is going to be the major product. Okay, adjacent पे आ गया, they are going to form the double bond itself. बाकी ऐसा नहीं कि बाकी नहीं बनेंगे, they will all those products will also be formed, but those will be minor products. Next one, I'm getting dot here, and then अभी क्या होगा बताओ. So now what is happening here is ना, the moment I am getting this one, और हम लोगों ने पहले भी देखा है, सोडियम will be reacting with this part also है ना. तो right now I'm not going to give you, अच्छा डॉट यहाँ पे नहीं, यहाँ पर तो आई ही था. What I'm going to say, sodium will react with this thing, and it is going to form first. तो यहाँ पे we are going to get here O minus and Na plus है ना, एंड प्लस हाफ H2. पहली बात तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा बिकॉज वी हैव गॉट अल्कोहल. याद करो वाटर क्यों नहीं लेते थे, बिकॉज वाटर वाज रिएक्टिंग विद NaH2O है ना, वाटर वाज रिएक्टिंग विद सोडियम, इट वाज फॉर्मिंग NaOH, दैट मींस OH माइनस प्लस ये बना दे रहा था ना. दैट थिंग विल हैपन इफ द मॉलिक्यूल इंटरनली इज हैविंग सम एसिडिक हाइड्रोजन ना, तो फिर उसका वो H2 बना के निकाल देगा, एंड दस Na वाला पार्ट विल बी रिएक्टिंग विद दैट OH, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये बन गया. अब इसके आगे की कहानी क्या है, we have got an internal nucleophile and we have got a good living group, and that's why it will not go in that zone जिसमें ऊर्ज रिएक्शन होता था. it will be having the substitution reaction, it will attack over this, ये चला जाएगा. so यहाँ पे if you see we are getting 1 2 3 4 5 6 membered, ये कुछ बन जाएगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पायरेन.
Next one. इसको पायरिन नहीं टेट्राहाइड्रोपायरिन बोल दो, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज नॉट देयर। इसको टेट्राहाइड्रो, ओके। पायरिन में डबल बॉन्ड दो दो आ जाते हैं, तो उसको सैचुरेट करने के लिए यू हैव टू पुट लाइक पायरिन इज लाइक इफ आई एम हैविंग दिस वन एंड देन यू हैव गॉट दिस वन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको पायरिन बोल देते हैं। टेट्राहाइड्रोपायरिन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, टेट्राहाइड्रोपायरिन, ओके। नेक्स्ट वन। नाउ अगेन सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल। अभी देखो ये जरूरी नहीं कि हर बार हेलो अल्केन ही दे। ओटीएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वी नो दैट। सो नाउ वी आर गेटिंग दैट, आई बी राइटिंग इट लाइक ओटीएस, ठीक है। एंड देन आई हैव गॉट दिस वन, दिस वन। नाउ इसमें से देखो वी हैव गॉट सीओ ओ एच, तो फिर से यहां पर वही कहानी होगी, O माइनस Na प्लस बनेगा, है ना, सोडियम के अटैक से। एंड देन विल बी हैविंग अटैक ऑफ दिस माइनस over this one, it will leave, and that's how we are going to get, if you count the number of atoms, 1 2 3 4 5 6, 6 membered फिर से मिल रहा है with one position occupied by O, next पे डबल बॉन्ड O आ रहा है ना, तो we are getting this is cyclic ester आ गया। Is it okay? Any doubt? ये जो आया this is called lactone। Is it okay? Next one, 11th one. If you see this one, I'll be getting dot over here, dot over here. We have got 1 2 3 4 5 membered ring, है ना, तो 5 membered ring डायरेक्टली बन जाएगा। तो I'll be getting here, like I told you, यहाँ पे डॉट मिलेगा एंड देन यहाँ पे डॉट मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ 5 membered ring, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। In the next case, if you see, I have increased the number of carbon significantly. Normally, if you are getting a 3 to 6 membered ring, then it is okay. It will be having intramolecular bond formation, and that is going to give you cyclic compound. But if the number of carbon is increasing above 6, then we say that it will be having polymerization, and that's why in this kind of case ना, देखो यहाँ पे डॉट बना, यहाँ पे डॉट बना, फिर वो नेक्स्ट चेन के साथ एसोसिएट होके इट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉलीमर। So in this case, we are going to get CH2 and ये N बन जाएगा। This is called polymerization product. I'll give you a note for this, that if you have got up to 6 membered ring बन रहा है, then it is okay. उसके आगे we start getting polymerization product in these cases. So cyclization occurs for the formation of 3 to 6 membered rings. But if number of carbon atom is greater than 6, then we are going to have polymerization. It is slightly different case again. Is it okay? तो मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ so that you can have the revision.
in all these cases. Next one, already we have discussed that कि यहाँ पे we are going to get 3 degree वाला आ रहा है यहाँ dot, तो we'll be getting one product which is alkene वाला केस आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में अल्कीन बन जाएगा, दैट्स वन, एंड दूसरा इसी का अल्केन बन जाएगा यहाँ पे, विल बी हैविंग H here. Is it okay? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट कि 3 डिग्री जब बनता है तो विल बी गेटिंग एलिमिनेशन के थ्रू विल बी गेटिंग अल्कीन प्लस H डॉट विल बी अटैकिंग ओवर द इनिशियल फ्री रेडिकल टू गिव यू द अल्कीन, है ना. So that's a different example. Already we have done that. Next one. This is interesting again. We are going to get this dot over here, dot over here. क्या possibility लग रही है? It can have resonance, है ना? Resonance के through देखो, this will be going here, this will be going here, and that's all. We are going to get another canonical structure is for the same compound is this dot and dot. अभी क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या बन जाएगा? विल बी गेटिंग बेंजीन, है ना. तो बेंजीन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. तो जब भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर द ओनली द मेजर प्रोडक्ट्स. ओके, दिस इज अगेन अ डिफरेंट एग्जांपल. एनी डाउट ऑफ दिस? तो वी हैव सीन ऑल द पॉसिबिलिटी, जो कि उर्ज रिएक्शन नहीं भी हो सकता है, वो सब पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देख ली. तो इन जनरल वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ एनी इन जनरल हेलो अल्केन विद सोडियम एंड ड्राई ईथर और जिंक एसिटिक एसिड बोल दे या SnHCl बोल दे या जिंक डस्ट बोल दे इन THF, ये सारे रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी हम लोगों ने कवर कर ली. तो इन जनरल आई टोल्ड यू कि हम लोग जब यहाँ कवर कर रहे हैं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन जनरल द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, है ना, वो भी कवर हो रहा है साथ में ही. तो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? बट एक मैसेज जो फर्स्ट रिएक्शन से मिला दैट वाज कि उर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, है ना. इफ यू वांट अनसिमेट्रिकल अल्केन वी हैव गॉट अनदर रिएक्शन. नील सेवंथ वन इज, लेट मी सी, सेवंथ कहाँ है, ये वाला ना. इसमें देखो ना, यहाँ पे डॉट बनेगा और यहाँ पे डॉट बनेगा, उन दोनों को मिला दिया, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया ना. जस्ट फॉर्म करके देखो, लेफ्ट देयर टू रिंग्स आर गोइंग टू शेयर एन एज एंड ईच साइड देखो, इन दोनों के अलावा इधर भी देखो 1 2 3 4 है ना. तो वी हैव गॉट 1 2 3 4 एंड दूसरे साइड में भी 1 2 3 4. तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4, है ना. सिक्स के बाद फिर से देखो, सिक्स में वी आर गेटिंग लीस्ट एंगल स्ट्रेन, है ना. 6 के बाद फिर से वो चीज बढ़ने लगती है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अप टू 6 हम लोग रिंग बनाते हैं और उसके बाद फिर वो पॉलीमराइजेशन विल बी प्रेफर्ड अगेन, है ना. 6 में यू आर गेटिंग द लीस्ट एंगल स्ट्रेन बिकॉज आइडियल बॉन्ड एंगल एंड द एक्चुअल बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल एज पर द हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स आर मैचिंग, है ना, 6 मेंबर्ड में. तो वहां तक चलेगा. उसके बाद फिर से हम लोग कहते हैं कि बिगर रिंग बनाने की बजाय इट विल स्टार्ट प्रेफरिंग द पॉलीमर प्रोडक्ट, है ना. हाँ, 3 या 4 भी जो बन रहा है दैट विल नॉट बी वेरी मच स्टेबल रिंग. इट विल बी सब्जेक्टेड टू कि बाकी अगर कोई रिएजेंट आए तो इट विल ऑल्सो बी रिएक्टिव, है ना. 5 एंड 6 आर क्वाइट स्टेबल बट 3 एंड 4 पे वो भी अनस्टेबल रहेगा. इट विल बी अंडरगोइंग एनी रिएक्शन इफ आई एम हैविंग अनदर रिएजेंट, है ना. तो उसकी बात तो हम लोगों ने रिंग ओपनिंग की बात की थी 3 एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर में, है ना. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. इज इट ओके ऋषित? क्लियर ना? नो, लाइक आई टोल्ड यू कि अब इस रिएक्शन से जो मैसेज हम लोगों ने कैरी किया दैट इज कि ठीक है, बाकी वेरिएशंस तो देख ही लिए. ऑल दोस वेरिएशंस आर देयर व्हिच मे नॉट फॉर्म the ideal cycloalkane in all the cases. We can have different kind of products also. That's one part. But one message was very clear that Ose reaction is not good for any alkane which is not symmetrical, है ना. जिसको RR टाइप से नहीं लिख पाएंगे, RR डैश टाइप से अगर लिख रहे हैं तो this method is not appropriate and that's why we need to follow some other method. Another method is called Corey-House reaction. Corey-House reaction, in fact, it is much preferred over Ose reaction because it is good for even the unsymmetrical alkane. दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर. देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है.
पहली बात तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड द रिएजेंट जिसकी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द, ये रिएक्शन नहीं है, कोरेहाउस रिएक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट द जनरेशन ऑफ द रिएजेंट। ओके, रिएक्शन अलग से बताऊंगा मैं। दिस इज द रिएजेंट यूज्ड इन कोरेहाउस रिएक्शन। ना, इसको बोलते क्या है? इट इज कॉल्ड, दो नाम है। एक तो इसका प्रॉपर नेम है जो कि इसके कंपोजिशन से है, दिस इज लिथियम डाई अल्काइल। एंड अल्काइल विल डिपेंड आर क्या है, उसके हिसाब से अल्काइल का नाम आ जाएगा क्यूप्रेट। बट इसी का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड गिलमन्स रिएजेंट। ओके, ना इसमें वी हैव गॉट अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, है ना, अल्काइल ग्रुप और मेटल के बीच का बॉन्ड है। लाइक वी हैव गॉट दैट इन द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड वी आर गेटिंग, है ना, वी आर गेटिंग मेटल कार्बन बॉन्ड। ना इन दिस केस, नाउ हाउ टू ट्रीट दिस रिएजेंट, तो ये समझो ये क्या है ना, वी हैव गॉट Cu अटैच्ड विद टू अल्काइल ग्रुप्स, एंड बिकॉज इट इज मेटल ना, विल बी कंसिडरिंग कि इस पे सफिशिएंट डेल्टा माइनस आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस वन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो इफ आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या तो SN2 या फिर एलिमिनेशन प्रेफर होता है ना। तो व्हेन वी आर गेटिंग 1 डिग्री पे अटैक करेगा तो SN2 वाली कहानी आएगी, या फिर E2 की भी कहानी आ सकती है, दैट ऑल्सो वी हैव लर्नड, है ना। तो अगर ये 1 डिग्री या CH3X पे अटैक फॉर CH3X और 1 डिग्री RX के केस में वी आर गोइंग टू गेट दिस वन। बट जैसे ही हम लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री में चले जाएंगे, R-X लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर R ऑलरेडी लिख दिया, 3 डिग्री R-X, वहां पर एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू फॉर्म अल्केन, आई नीड टू हैव जो 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला पार्ट है उसको इधर रखने का है, यहां पे रखने का है। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको 1 डिग्री या मिथाइल रखना है, सो दैट वी आर गेटिंग द अल्केन। 2 डिग्री या 3 डिग्री में इट विल स्टार्ट गिविंग यू अल्कीन आने लगेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, ना। एनी डाउट? तो दो चीजें हैं यहां पर, वी कैन टेक टू डिफरेंट काइंड ऑफ, तो रिएक्शन क्या है, आई राइट दैट रिएक्शन ऑल्सो। नाउ वंस वी हैव गॉट द रिएजेंट already prepared, R2CuLi, it will be attacking over R-X. And if it is, if R- is 1 degree or methyl, then we'll be getting R plus RCu plus LiX. Okay, दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर ये R- जो है सेकेंडरी या टर्सरी हो गया तो देन विल बी गेटिंग एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो दो चीजें आ गई। पहली बात, इफ आई एम गेटिंग R- तो वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल अल्केन ऑल्सो, है ना। तो दैट्स वन पार्ट। दूसरा पार्ट ये आ गया, बट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि कौन सा अल्केन बनाना है, उसमें से R- को हमेशा हम लोगों को मिथाइल या प्राइमरी लेके चलना है। ठीक है, सो आई विल बी गिविंग यू 2 नोट्स। इनफैक्ट देर आर 4 नोट्स टोटल। एक तो मैंने वो सब लिख ही दिया है जो ऊपर मैंने बताया ऑलरेडी, दोज आर द रिटन नोट्स। लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट और गिलमन्स reagent is the organic metallic compound which is being used here as the reagent. This is going to act as strong nucleophile, and that's why it will be preferring SN2 mechanism for
1 डिग्री और CH3 1 डिग्री R डैश X और CH3X के लिए. But the moment I start getting 2 degree or 3 degree, it will start preferring E2 mechanism, है ना. तो if I want to prepare alkane, तो I need to play smart की R dash की जगह हम लोग हमेशा CH3 या प्राइमरी वाला कुछ रखेंगे. R के जगह we can have कुछ भी, है ना. This can be, this R can be 1 degree, 2 degree, 3 degree, कुछ भी, मिथाइल, कुछ भी हो सकता है ये सब हो सकता है. बट R dash की जगह हमेशा हम लोग will be preferring these two. Is it okay? Like if I give you a question, I want to prepare this by Coriolis synthesis. Try to find out कि क्या लेंगे हम लोग. What is going to be the reaction? We want to prepare this compound C पे. We have got CH3, 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 and this is neopentane. First thing is उर्ज रिएक्शन तो सीधा हाथ उठा कर देगा, है ना, कि आई कैन नॉट प्रिपेयर दिस कंपाउंड, है ना. वी डोंट हैव एनी आर आर टाइप का कॉम्बिनेशन, कहीं से भी नहीं आ रहा है. बाकी जो आ रहा है वो 3 डिग्री आ जाएगा. 3 डिग्री में आते ही वी विल बी गेटिंग एलिमिनेशन वहां पे भी, है ना. वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस कंपाउंड बाय एनी जुगाड़ फ्रॉम उज रिएक्शन. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रिएक्शन. नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट दोज टू reactants which are going to form this neopentane. Can you tell me? So like I told you, again you have to divide it into two parts. तो दो पार्ट में डिवाइड करने के एक ही तरीके हैं. एक पार्ट ये आ गया और दूसरा पार्ट ये है. लाइक आई टोल्ड यू, दिस पार्ट विल बी आर एंड दिस पार्ट हैज टू बी आर डैश, है ना. क्योंकि इसको आर डैश लूंगा तो फिर एलिमिनेशन में चला जाएगा. एंड दैट्स व्हाई इफ आई एम टेकिंग, इसका आंसर क्या होगा, इफ आई एम टेकिंग आर की जगह वो जो R2 लिख रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पे विल बी टेकिंग सी पे वी हैव गॉट CH3, 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 इसका ट्वाइस एंड देन CuLi. ये हम लोग R की जगह ये लिख रहे हैं. एंड देन विल बी टेकिंग CH3X एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस प्रोडक्ट, है ना. तो दिस विल बी गिविंग यू दिस कंपाउंड नियोपेंटेन. इसके साथ साथ RCu भी बन रहा था, तो दैट विल बी गिविंग यू Cu with this CH3, CH3 and CH3 प्लस LiX, है ना. ये तो प्रोडक्ट बनते थे. तो वी आर गेटिंग इट. बट अगर मैंने कुछ और ले लिया होता, लाइक इफ आई एम टेकिंग CH3 twice CuLi plus, now if I am taking this one as haloalkane, can you tell me what is the product? What will be the product of this one? No, this is the nucleophile now. CH3 minus is the nucleophile, but we have got a 3 degree haloalkane, है ना. ये 3 degree हो गया, and that's why इसमें elimination हो जाएगा. And that's why in this case we are not going to get that product. So like I told you, Coriolis से बना सकते हैं, but we need to be careful about R क्या लिया, R dash क्या लिया. तो in this case we are going to get this one, है ना. और फिर वहां CH3 माइनस के पास H प्लस जाएगा एंड दैट विल बी फॉर्मिंग CH4 बन जाएगा. ओके. तो इफ द टारगेट वाज नियोपेंटेन, आई नीड टू फॉलो दिस मेथड, नॉट दिस वन, है ना. एनी डाउट? सो लाइक why I have written earlier ki it is much preferred over urge reaction. तो like I told you, there are some alkanes which can never be formed by urge reaction. One thing, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया तुमको, आर आर का कनेक्ट करने का मतलब है कुछ तो एक आर आर होना चाहिए ना. तो उसमें अगर 3 डिग्री एक साइड हो गया तो दैट इज गोइंग टू गिव यू एलिमिनेशन रिएक्शन. तो यू नेवर बी गेटिंग नियोपेंटेन बाय उर्ज रिएक्शन. दूसरा, उर्ज रिएक्शन के साथ लिमिटेशन था, इट वाज नेवर
good for unsymmetrical alkane, but Corey house में we are able to get this neopentane by one method, but we need to be careful about कि R क्या लिया, R dash क्या लिया. So I told you already कि उसमें से ध्यान में रखना है कि R dash which is associated with X, that means haloalkane वाला R should be primary और methyl only. यहाँ पे R जो है that is R2CuLi वाला R जो है that can be 1 degree, 2 degree, 3 degree, methyl कुछ भी हो सकता है. बट द मोमेंट आई एम गेटिंग 3 डिग्री यहाँ पे ले लिया तो फिर वहां एलिमिनेशन हो जाएगा, एंड एलिमिनेशन के थ्रू वी आर गोइंग टू गेट द अल्कीन, नॉट द अल्कीन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, है ना. तो दैट्स वन पार्ट. तो यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू, इसके साथ गुड थिंग अबाउट दिस थिंग इज, दो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे. इनफैक्ट उर्ज रिएक्शन वाज नॉट गुड फॉर अनसिमेट्रिकल. सेकेंड थिंग इज, वहां पर एक ही अल्काइल हैलाइड, जैसे मल्टीपल अल्काइल हैलाइड लेते थे वी वर हैविंग क्रॉस प्रोडक्शन, है ना. बट यहाँ पे वी कैन टेक टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स डेफिनेटली विदाउट गेटिंग एनी मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स, है ना. दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज है, यहाँ जो मैंने R2CuLi लिया है ना, उससे मैं हेलोबेंजीन तक भी बना पाऊंगा. मतलब 1 डिग्री भी ले सकते हैं और हेलोबेंजीन भी ले सकते हैं वहां पे. दैट कैन ऑल्सो बी यूज. इज इट ओके? R2CuLi में ये, अच्छा ये फिनाइल वाला भी हो सकता है. लाइक आई टोल्ड यू वी कैन ऑल्सो हैव दिस वन, जो मैंने पहले से स्टार्ट किया था कि वहां पे हेलो अल्केन्स भी, सॉरी, फिनाइल रिंग भी ले सकते हैं आर की जगह. जो मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल बोला था, वहां पे पीएच भी आ सकता है. दैट कैन ऑल्सो बी देयर. ओके, तो इट कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिथाइल और फिनाइल, पीएच भी हो सकता है. पीएच के साथ एक्स मत ले लेना, इट विल नेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, है ना. एनी डाउट अप टू दिस? अभी इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन, जो उर्ज रिएक्शन देखा ना, उसी से रिलेटेड देयर आर टू मोर रिएक्शन. व्हाट इन वन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, दूसरा कहलाता है उर्ज फिटिक रिएक्शन. ये देखो क्रॉस कनेक्शन है. फिटिक रिएक्शन का मतलब क्या? उर्ज रिएक्शन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात की थी. फिटिक रिएक्शन में पीएच एक्स ले लेते हैं हम लोग, एंड पीएच एक्स इज गोइंग टू गिव यू बायफिनाइल, है ना, और डायफिनाइल. उर्ज फिटिक में वन इज this one and another is Rx, and that is going to give you hello अल्काइल बेंजीन दे देगा. ठीक है, तो दीज आर टू मोर रिएक्शंस विच आर अगेन, साथ में ही पढ़ लेते हैं इसको, अलग से कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना नहीं है. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं. फोर्थ रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ RCOOH और RCONA. मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लो, या कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट ले लो, या एसिड खुद ही ले लो. वहां पे वी आर गोइंग टू से दैट की we'll be having this reaction. पहले reaction क्या है that we are going to learn. If I am taking acid, the reagent here is soda lime. इसके बारे में अभी और डिस्कस करेंगे. सोडा लाइम हीट करते हैं तो we say that obviously सोडा लाइम जो होता है ना, it is having NaOH and CaO in 3:1 रेशियो, मोलर रेशियो. ठीक है, ये नेचुरली मिलता है. Okay, so if I am getting NaOH, it will be reacting with the acid. So this is going to form RCOONA plus H2O बना लेगा. तो if I am taking acid, that is going to form this thing, and then इस पे जो reaction होता है, what is that reaction? तो पहले तो shortcut बता देता हूँ how to understand this reaction. If I have got RCOO minus Na plus, और साथ में you take that NaOH, Na plus OH minus. ठीक है, जस्ट टू मैकेनिज्म बताऊंगा अलग से मैं. एक पार्ट होता है जिससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर्म. तो वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस थिंग. इसको अलग कर लो, यहां तक, नॉट यहां तक, इतना अलग कर लो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट एज अ प्रोडक्ट, विल बी गेटिंग RH प्लस Na2CO3. ओके, दिस इज वन पार्ट. ये मैकेनिज्म नहीं है, दिस इज जस्ट शॉर्टकट की हाउ टू रिमेंबर दिस रिएक्शन. वी आर गोइंग टू गेट दिस. मैकेनिज्म क्या है? आई विल टेल यू दैट मैकेनिज्म आल्सो. If you see the mechanism of it,
we have got RCO O minus, and we have got OH minus as the reagent. This is going to attack over this carbonyl और ये open हो जाएगा, and that's how we are going to get RCO minus, O minus and OH, and then we are saying that कि यहाँ से this has become dianion है ना, and that's why it is going to release R minus. ये कैसे release करता है देखो, I'll just show you with a different pen. तो यहाँ से we are saying that कि ये वापस आएगा और इस बार इसको निकाल देगा, and that's why we'll be getting, तो काफी ज्यादा इसका एंगल स्ट्रेन विद डायनाइन था, एंड दैट्स व्हाई इट कैन इजीली रिलीज दैट R माइनस. एंड साथ में देखो क्या बना है, वी हैव गॉट C डबल बॉन्ड O minus and OH. What is this? This is HCO3 minus. It is amphiprotic. इसका बिहेवियर विल डिपेंड ऑन कि किसके साथ भी रहा है, तो बाजू में एक स्ट्रॉन्गर बेस मिला है तो इट विल रिएक्ट विद दैट है ना. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट्स विद कंजुगेट बेस ऑफ वीकर एसिड है ना. तो RH विच इज अल्केन से स्ट्रॉन्गर है HCO3 माइनस है ना. तो दिस इज स्ट्रॉन्गर देन RH, and that's why we are going to have acid base reaction. In this case we are going to have acid base reaction in this case, and that's why we'll be getting RH बन जाएगा यहां से, we'll be getting RH and then plus CO3 2 minus है ना. Is it okay? Now if you see this one, इसमें होता क्या है, if you identify these two steps ना, पहले में देखो सिग्मा फॉर्म हुआ है, पाई ब्रेक हुआ है, दूसरे में पाई ब्रेक हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा ब्रेक, सॉरी पाई फॉर्म हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा ब्रेक हुआ है. दिस वन इज ब्रेकिंग है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इज स्टेप 1, एंड इफ आई कॉल इट स्टेप 2. तीसरा वाला स्टेप तो एसिड बेस रिएक्शन है, दैट विल बी वेरी फास्ट, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दिस इज गोइंग टू बी द RDS, द स्लोएस्ट स्टेप, एंड दैट्स व्हाई. अब यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे. फर्स्ट थिंग इज R माइनस बन रहा है RDS में, तो जहां जहां R माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कोरिस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा होगा. दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज यहीं से RH बनने वाला है, तो वी हैव टू सी दैट कि R माइनस बीच में बना था, ये पॉसिबिलिटी हमेशा देख के चलना है. तीसरी बात, सोडा लाइन की बात भी करेंगे आगे, बट इससे रिलेटेड जितने नोट्स हैं वो पहले देख लेते हैं. बट इफ यू हैव गॉट एनी डाउट देन जस्ट आस्क मी. सो one particular note is carbanion mechanism है. I'll write the notes. Okay, already I have having this one. So like I told you, लिखने की जरूरत नहीं है, we already have that notes written. So first thing is we have got carbanion mechanism, and the RDS involves formation of carbanion. And why we are calling it RDS, like I told you, it is breaking a stronger CC bond है ना. So step 2 is involving the breaking of CC bond. I'll write it above it. We are saying that step 2 is involving breaking of CC bond, and that's why it is RDS. So RDS is involving formation of carbanion. So we are having carbanion mechanism. That means greater the stability of carbanion, more will be the reactivity of the substrate. That's one part. And substrate की reactivity बढ़ाने के लिए क्या होगा? Any factor which is going to stabilize R minus, that means carbanion, will be increasing the reactivity. तो R minus को stabilize करने वाला क्या होगा? Electron withdrawing groups है ना. तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी के लिए विल बी सेइंग दैट कि इफ आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज इट है ना. तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना. तो आगे जाकर विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट आल्सो. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप है ना.
उसका होना अच्छा नहीं है, दैट्स अनदर पार्ट। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एक तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है ना कि यहाँ पर सीएओ क्या करता है, ठीक है। पहली बात, अंडरस्टैंड द रियल थिंग। मतलब जेई एडवांस में दे, इफ दे आर आस्किंग यू, दे नो दैट कि व्हाट इज द एक्चुअल रियल थिंग। तो वहां पे ये समझने का है, वंस आई हैव रिपोर्टेड दैट सोडा लाइम लिया गया है, तो इसमें ऐसा कोई पर्पस नहीं है सीएओ लेने का। Soda lime is the natural thing which is found inherently. It is having NaOH and CaO in 3:1 ratio. CaO is not going to disturb the reaction, and that's why we don't have to separate that CaO from NaOH to have this reaction. So NaOH का होना itself will be sufficing the purpose, and CaO is not going to disturb it. And that's why we are not going to spend any money over the separation of CaO from NaOH in the soda lime. ठीक है? So that's real reason that soda lime naturally जो मिल रहा है उसमें CO is there, and CO is not going to give you the disturbance in the reaction, and that's why we are going to take directly the soda lime. We are not going to separate it into NaOH and CO, and then we are going to utilize NaOH. That's one thing. But कुछ कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि उसको जबरन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं दे रहा हूँ उसको भी, मैं ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ, बट दिस इज द एक्चुअली द रियल रीजन दैट इनहेरेंटली कोई पर्पस नहीं है सीएओ का लेने का, because CaO is not going to disturb the reaction, and that's why in order to have low cost of the reagent na, we are going to directly take the soda lime. Okay. हाँ जी, NaOH is the base है ना, तो बेस की तरह यूज कर रहे हैं। तो बेस वाज एक्टिंग बिकॉज इट वाज द सोर्स ऑफ OH माइनस है ना, OH माइनस इज कमिंग फ्रॉम NaOH ओनली है ना। ओके, बट कुछ जगहों पर मैंने देखा, जो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, अगेन इफ यू गो फॉर द फॉरेन रेफरेंस बुक ना, नॉर्मली वो एक्चुअल रीजन लिख देते हैं, बट इंडियन राइटर्स में मैंने कई जगह देखा है इट विल बी गिविंग यू कि CO2 जो है ना, डिकार्बोक्सिलेशन ही तो हो रहा है। देखो ना व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर रिमूविंग CO2 फ्रॉम RCON है ना, ठीक है। यहां से भी देखो, यहां से वी आर रिमूविंग एक्चुअली दिस थिंग। तो डीकार्बोक्सिलेशन है, तो सम एट सम प्लेसेस एंड फ्यू फैकल्टीज आल्सो विल बी टीचिंग यू कि ये CO2 को निकालने में हेल्प कर रहा है। काय को उसको हेल्प करवाना है, एनीवेज इट्स सफिशिएंट इनफ टू रिमूव द CO2 है ना। तो CO का हेल्प मिल रहा है, ऐसा कुछ होता एक्चुअली नहीं है, बट इफ दे आर राइटिंग, एंड अगर उन्होंने लो कॉस्ट वाली कहानी नहीं बोली है तो दे आर गोइंग फॉर दिस वन। ठीक है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मेंस में, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल रीजन, कभी कभी वो क्या है ना, अगेन वहां के क्वेश्चन भी कोचिंग सिस्टम से ही आते हैं, तो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि समवेयर दे विल बी राइटिंग दिस as the reason, but the actual reason is there is no purpose of taking CaO. Actually, CaO is found in nature along with NaOH in the form of soda lime, and directly taking soda lime will be giving you the benefit of low cost because you are not spending any money in separating NaOH and CaO. And CaO is not going to disturb the reaction. Is it okay? Any doubt? चलो, तो नाउ आई विल बी आस्किंग यू, जो मैंने ऊपर पॉइंट रेज किया था कि इन दिस रिएक्शन, इन ऑल दीज रिएक्शंस वी आर गोइंग टू गेट R माइनस एज द carbanion formed in the RDS, and that's why greater the stability of R minus, more will be the reactivity of the substrate. So if I start asking you reactivity, compare करो जरा, एक एक करके कर लेते हैं। Hello, I'm giving you 3 questions, then we'll move forward. Hmm. Tell me. Tell me the answer of first decreasing order बताना है। First one, tell me. Okay, so this is electron donating group, which is not good for carbanion, na?
अभी कार्बोनाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे माइनस आने वाला है, यहाँ पे माइनस आने वाला है, यहाँ पे माइनस आने वाला है. माइनस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, नॉट बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना. And that's why we'll be saying कि in fact the third one will have the highest reactivity, one will have second, and second will have the least reactivity because it is electron donating group which is going to destabilize minus, है ना. Is it okay? This is clear ना. चलो that's one part. Second one again we are going to get, ये देखो माइनस लिखा है मतलब we are going to get minus over here, यहाँ पे we are going to get minus over here, एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट माइनस ओवर एयर. स्टेबिलिटी बता दो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, है ना. वी आर गॉट फर्स्ट से जो मिल रहा है कार्बन आयन दैट इज दिस वन, वन से जो मिल रहा है. सेकेंड में जो मिल रहा है विच इज CH3 माइनस सिंपली. थर्ड में जो मिल रहा है वी हैव गॉट CH3 CH2 माइनस. नाउ वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी, है ना. सो दैट्स व्हाई इफ दे आर आस्किंग यू ऑर्डर फ्रॉम दिस वन, सेकेंड वाले में विच इज हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली इट इज वन, है ना. वन इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. 2 and 3 में, 3 में we have got plus I effect of this thing which is going to destabilize minus charge, and that's why we'll be saying 1 के बाद 2 आएगा and then 3 आएगा. Is it okay? Everyone clear ना. फिर से थर्ड वाले में फॉर्म द अनायन, कंपेयर द स्टेबिलिटी एंड दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. यहां से अनायन बनाया, वी आर गोइंग टू गेट दिस माइनस, यहां से वी आर गोइंग टू गेट this, and last वाले में you'll be getting this one, है ना. तो यहां पे रेजोनेंस भी है, एरोमेटिसिटी भी है ना. दिस इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बट देयर इज नो एरोमेटिसिटी, है ना. बट नो एरोमेटिसिटी. This doesn't have any resonance, no resonance here. And that's why if they are asking you order here, we'll be saying one is having the maximum stability for the carbanion. So this is having the maximum reactivity, then 2, and then 3. Is it okay? Any doubt? Next one, fourth one. Fourth one. If you see, alkyl groups are electron donating groups, not good for carbon ion, है ना. These are electron donating groups. These are electron donating groups. इट इज नेट डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में रखा था, तो इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बट वीकली, है ना. वीकली डीएक्टिवेटिंग था ये. दिस इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग. दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है. द वन विच इज गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेशन, दैट मीन्स strong electron withdrawing power, that will be having the maximum stabilization for the carbon ion formed, है ना. And that's why if they're asking you the order, fifth will have the highest order, then उसके बाद फिर फोर्थ वाला इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ओनली. बाकी तीनों जो बच गया ना, नाउ वी हैव टू सी दैट कि किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, वो ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा. whenever you have got alkyl groups ना, normally we find that कि वहां पर हम लोग पहले हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, देन फिर
हम लोग वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के हिसाब से थर्ड विल हैव द मैक्सिमम डोनेटिंग पावर, बट हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से फर्स्ट विल हैव द मैक्सिमम डोनेशन पावर, है ना। तो टुवर्ड्स रिंग, बिकॉज डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद दैट, तो इट विल बी हैविंग significant hyper conjugation के through it will have the maximum donating power, so this will give you the minimum stability for the carbon ion, है ना। and that's why यहाँ पे इसके बाद we'll be writing 3 then 2 and then 1, is it okay? तो यहाँ पर we are comparing hyper conjugation, is it okay? चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ में we are going to get माइनस ओवर एयर, माइनस ओवर एयर, माइनस ओवर एयर। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट में है, देन सेकंड में, देन थर्ड में, है ना, वो तो क्लियर ही है। तो दिस विल बी 1 देन 2 देन 3, इज इट ओके? नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, वी आर गोइंग टू गेट माइनस ओवर एयर, है ना। वी आर गोइंग टू गेट माइनस ओवर एयर, वी आर गोइंग टू गेट माइनस ओवर एयर, है ना। और वी आर गोइंग टू गेट माइनस ओवर एयर एंड माइनस ओवर एयर। इफ यू कंपेयर ऑल दीज थिंग्स, सब में कहीं पे भी वी डोंट हैव एनी रेजोनेंस का केस, एवरीवेयर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओनली। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा, लाइक यहाँ पर देखो ये मिल रहा है, यहाँ पर वी आर गेटिंग दिस वन एंड माइनस ओवर हेयर, यहाँ पे वी आर गेटिंग दिस वन एंड माइनस ओवर हेयर, वी आर गेटिंग माइनस ओवर हेयर एंड वी आर गेटिंग CS3 माइनस। तो अभी यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन तो कहीं लग नहीं रहा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली प्लस आई इफेक्ट। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ग्रुप में उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखता है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट कि इसमें लीस्ट डोनेटिंग पावर जो आ रहा है वो CS3 में आ रहा है, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है। दैट्स व्हाई 5 विल हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर द कार्बन, एंड दैट्स व्हाई 5 विल हैव द मैक्सिमम रिएक्टिविटी फॉर एज अ सबस्ट्रेट, है ना। उसके बाद फिर इसके बाद देखो यहाँ 4 में आ रहा है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल एक कनेक्टेड है। 4 के बाद इफ यू सी 3 में ही आ रहा है ना, वी आर गेटिंग 1 CH2 CS3 है, तो देन 3 आ रहा है। उसके बाद फिर 2 आ रहा है, बिकॉज एक साइड से CS3 है और फिर दो इमीडिएट कार्बन है और एक बाद वाला कार्बन है। यहाँ तो ऑल द 3 कार्बन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस माइनस, है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव दिस ऑर्डर, इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ये देखो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ही आसान है इसमें। तो आई बी गिविंग यू सम सिंपल एग्जांपल, बट आई बी गिविंग यू सम स्पेशल एग्जांपल आल्सो, थोड़ा अलग दिखेगा, डायरेक्ट वाला नहीं दिखेगा। एक दो तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ पहले। Following, I'll write that. I'll write all the questions. So first one is, if I'm writing CS3, CH2, COOH, and if I give you soda lime heat. Next is, if I'm giving you then again यही। थर्ड वन इज, यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, what other kind of questions you can be asked. So I'll give you one more, like if I have got this one and COOH, and then if I get this one, then I'll be giving you, एक और दे देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा बाद में दूंगा। इफ आई गिव यू यहाँ पे COOH एंड यहाँ पे OTS, एंड देन इफ आई एम गेटिंग दिस, ये पहले ये चार करके देख, and then we'll be solving the remaining questions. I'll give you few more questions.
तो एक काम करो, इसमें पहले तो ले लो सोडा लाइम हीट, सेकेंड स्टेप में H3O प्लस भी ले लो। हम्म, चलो जी, फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू गेट, इसका माइनस यहाँ पे मिलेगा ना, विल बी गेटिंग माइनस ओवर हेयर, एंड देन इसी का अल्केन बन जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट इथेन, है ना, वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू गेट CH3 है ना, बिकॉज यहाँ CO2 चला जाएगा, दैट मच वी डू। यहाँ पर भी वैसा ही है, ये वाला पोर्शन निकाल देंगे, एंड विल बी गेटिंग अल्केन, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस वन, दिस, है ना, आइसोप्रोपेन। इज इट ओके? प्लस में और क्या क्या बनता है, तो वी आर गोइंग टू गेट CO2 गैस निकल जाएगा, प्लस वी आर गोइंग टू गेट Na2CO3, यहाँ पर निकाल दो, है ना। तो Na2CO3 नॉर्मली हम लोग Na2CO3 ही निकालते हैं इधर, विल बी राइटिंग यहाँ पे, विल बी गेटिंग Na2CO3, है ना। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, सो इफ यू सी दिस वन, बताओ जरा क्या बनेगा यहाँ, एनीवन? ओके, ऋषित हैज गॉट द राइट आंसर। देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा तो वही कहानी है, फर्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू गेट दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे माइनस मिलेगा ना, एंड देन इट विल बी हैविंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू एक तो यहाँ से भी प्रोडक्ट मिलेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट, अगर पता चल रहा है तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से भी प्रोडक्ट मिल सकता है, बट वी कैन ऑल्सो हैव अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली गिविंग यू एरोमेटिसिटी इन द रिंग, है ना। O माइनस मिल रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे H3O प्लस आ जाएगा, तो विल बी गेटिंग फिनॉल, दैट्स व्हाई फाइनल प्रोडक्ट विल बी फिनॉल हियर, OH। इज इट ओके? दिस वाज स्लाइटली थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, तो ये सब रिवीजन में रखोगे जो अलग टाइप के दिख रहे हैं थोड़े। अगेन यहाँ पर देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ से क्या बनेगा, अगेन आई विल बी फॉर्मिंग दैट कार्बोकेटन, बट ऑलरेडी अपने पास अब एक पैटर्न आ गया है कि इफ द सबस्ट्रेट इटसेल्फ इज हैविंग गुड लिविंग ग्रुप, एक जगह यहाँ माइनस मिला और यहाँ पर OTS है, तो OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो माइनस इज गोइंग टू अटैक ओवर इट इंटरनली विद इन द मॉलिक्यूल, ये चला जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, एंड हम लोगों ने ऐसा बॉन्ड बनाया था डॉट के साथ, है ना, उस रिएक्शन में, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे विल बी फॉर्मिंग दिस वन। इज इट ओके? एनी डाउट? चलो और कुछ कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आई बी गिविंग यू, टेल मी। D2O D+ ले लो, ऐसा कर लो। तो वी हैव गॉट ब्रिज हेड पे COH मिल रहा है, तो ब्रिज हेड पे माइनस बनेगा, माइनस कैन बी फॉर्म्ड एट ब्रिज हेड, है ना। प्लस एंड डॉट में इशू है, बिकॉज दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, माइनस इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड दैट्स व्हाई
माइनस यहाँ बन सकता है, तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा. देर विल बी रिएक्शन. इनफैक्ट यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट माइनस चार्ज, है ना. एंड देन वी आर सेइंग दैट कि D2O बी लिख दे तो चलेगा, D2O D प्लस लिख दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. एंड दैट विल बी, जो बनेगा यहाँ पे इट विल बी वहीं पर जहाँ COH है, वी आर विल बी गेटिंग D ओवर एयर. Is it okay? Now you'll also be getting a set of compound जहां पे बीटा पोजीशन पे you'll find that कि COH जहां पे है उसके next carbon पे you'll be getting some electron withdrawing groups attached with it. I'll give you a note for that, and then we'll see some more examples. So note is, if an electron withdrawing group is present at beta position to the COOH or COO minus group, then decarboxylation occurs by heating even without सोडा लाइम. तो ऐसे केसेस में दे मे नॉट गिव यू सोडा लाइम हीट. सोडा लाइम दे रहा है तो देन इट इज ओके, बट इवन इफ दे आर सिंपली गिविंग यू हीट ना, तो भी काम हो जाएगा. जैसे आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. सो इफ आई एम हैविंग मॉलिक्यूल लाइक, इफ आई एम गेटिंग एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देख लो. इफ आई एम गेटिंग दिस वन, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ COOH कर दिया, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O कर दिया. दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना. तो इफ आई एम कॉलिंग दिस वन एज द अल्फा पोजिशन, तो दिस इज बीटा. तो बीटा पे अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो व्हाट हैपेंस हियर ना, यहाँ पे माइनस विल बी स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ दैट. एंड दैट्स व्हाई इवन इफ यू आर हैविंग दिस हीटिंग वाला प्रोसेस ना, विदाउट सोडा लाइम भी यूज किए हुए, अगर इसी पे पूछ दिया ना, इट इज सिंपली बीइंग हीटेड, even then decarboxylation can occur, and you'll be writing that इसका product will be like this. Is it okay? Any doubt? अब इसी में कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. So if I give you, take this one and heat, and heat. हम्म, ठीक है, ये ले लो. कल ये कर लो, एक और दे दूंगा बाद में.
क्लियरली इट इज गिवन दैट कि COOH जिस कार्बन पे है उसके नेक्स्ट कार्बन पे वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, एंड दैट इज वैलिड इवन फॉर दिस COH ग्रुप। तो इसके लिए भी हो सकता है ना, सिंपली बाय हीटिंग विल बी गेटिंग डी कार्बोक्सिलेशन एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट साइक्लोहेक्सानोन, है ना। दोनों तरफ से डीकार्बोक्सिलेशन कैन बी पॉसिबल विदाउट यूजिंग, इवन विदाउट यूजिंग सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम दे दे तो भी करना है, ऐसा नहीं कि अभी हीट पे हो रहा है तो सोडा लाइम पे नहीं होगा। सोडा लाइम तो इट इज गोइंग टू हेल्प ओनली, है ना। बट इन दिस केस इवन विदाउट सोडा लाइम वी आर गोइंग टू हैव डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। इज इट ओके? अभी वही कंडीशन यहाँ देखो, चारों COH के साथ है। COH के लिए बीटा पे ये है, इस COH के लिए भी यही बीटा पे ये है ना। इस COH के लिए दिस इज हैविंग बीटा पोजीशन पे ये दिख रहा है, और इस COH के लिए भी वी आर हैविंग दिस वन एज बीटा पोजीशन पे, एंड दैट्स व्हाई चारों चला जाएगा। सो विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट, है ना। लास्ट वन, इफ यू सी दिस वन, ये अगर अल्फा है ना तो बीटा पे ये है। अगेन दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो वन ऑफ दीज विल बी अंडरगोइंग डीकार्बोक्सिलेशन, बट एक का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद दूसरे के लिए नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई in that case if two COH are present on one carbon na, one of them will be undergoing decarboxylation in while heating। हाँ, अगर मैंने सोडा लाइम दे दिया होता तो फिर दोनों जाता, बट सिंपली हीटिंग से सिर्फ एक ही जा पाएगा। इज इट ओके? सिमिलरली इफ आई So गिव could यू you explain मेलोनिक the एसिड। ninth one again? हाँ जी, बोलो, टेल मी। Sir, could you explain the ninth one again? Ninth one na, see, Yes, sir. if I say that this is our COOH group, एंड इफ यू सर्च फॉर अल्फा एंड बीटा, इस साइड में तो बीटा पे कुछ भी नहीं है, बट इस साइड में बीटा पे वी हैव गॉट द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दिस कैन डीकार्बोक्सिलेट एंड दिस विल बी गिविंग यू दिस प्रोडक्ट। ओके, आई हैव जस्ट कंसीडर्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस ओनली। नाउ आफ्टर दैट फॉर दिस COH वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, है ना। And that's Yes. why this another second COH will not undergo decarboxylation. Is it okay? तो one will be there, another will not be there, है ना। तो एक ही का होगा, दूसरे का नहीं होगा। Similarly, if I give you malonic acid ले लो, CH2 and then COOH, okay, and if I am giving you, अच्छा, अगर इसी में मान लो ऐसा दे देता सोडा लाइम हीट, फिर जाके आई विल बी फॉर्मिंग साइक्लोहेक्सेन। इज इट ओके? क्लियर है? बिकॉज देन डिकार्बोक्सिलेशन एट एवरी कार्बन कैन अकर, बिकॉज वी हैव गॉट सोडा लाइम, और उसका एक मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। बट विदाउट सोडा लाइम इफ यू वांट डिकार्बोक्सिलेशन टू अकर, इट मस्ट बी हैविंग some electron withdrawing group present at the beta position, and that's another part। अभी यहां पर इसका देख लो, if I am going to have this one and इसमें simply heat दे दिया, what we are going to get? एक ही जाएगा, है ना। So we'll be getting CH3COH as the product। Is it okay? अब इसी में अगर उन्होंने सोडा लाइम हीट दिया होता तो फिर क्या करते? Then we'll be getting CH4, वो सारा का सारा चला जाएगा ना। Any doubt? एक छोटा सा और रिएक्शन है, that will cover and then we'll end this lecture। So these are some एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो है ना, नॉर्मली अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ा दिया तो इसको ऑलरेडी मैं कवर कर देता, बट नाउ वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, यहीं पे कवर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट अभी के लिए मैं आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक पार्ट ऑफ इट कि कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। तो वी आर गोइंग टू टेक सम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सम एसिड जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले, ठीक है। तो आई विल गिव यू द पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द रिएक्शन। तो इसमें वी आर गोइंग टू हैव, क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे, विल बी हैविंग sodium या potassium salt of some acid which will be having electrolysis। electrolysis में we are going to follow again free radical and ionic दोनों होता है। normally if nothing is given we will be following free radical वाला mechanism। ये mechanism कैसा दिखेगा, I'll give you the mechanism। यहाँ पर क्या होता है, if I'm talking about at cathode क्या होने वाला है, तो cathode पे water is there तो H+ का रिडक्शन होगा
H plus is going to give you, plus electron is going to give you half H2, and at anode we are going to have ये जो RCOO minus है ना, this will be undergoing oxidation. It is going to form RCOO dot plus electron, and then ये जो dot बना ना, this is going to give you R dot. This is going to give you R dot. So we'll be getting R dot plus CO2 gas released. This is one of the product at anode. And दूसरा जो प्रोडक्ट है, once we have got R dot, ये कहानी वापस से उस रिएक्शन पे ले जाके जाती है ना, तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि उस रिएक्शन में जितने वेरिएशंस पड़े थे वो सब के सब इधर भी आ सकते हैं. इट विल बी हैविंग अनदर R dot. अगर मिल गया तो RR बन जाएगा. एनी डाउट? बट also it will have many byproducts form. RCOO dot से R dot attach होके एस्टर भी बना सकता है ना. तो I'll give you the overall part. जितना भी हम लोगों ने सीखा I'll give you that. But like I told you, R dot जैसे ही बन गया तो हम लोगों ने उस रिएक्शन में जितने वेरिएशंस देखे थे वो डॉट वाले, वो सब चीजें यहाँ पे भी आ जाएंगी. तो एक तो रिएक्शन ऑलरेडी जो मैंने समझाया दैट इज दिस पार्ट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ. तो वी आर गोइंग टू गेट दिस वन. लेकिन I told you also कि once we have got the R dot, we can have R dot connected with another R dot. That's one part. But we can have R dot connected with RCO dot. That will give you ester also. है ना? That is another part. But like I told you, consider all the variations covered in Coase reaction. Valid here also. है ना? द मोमेंट यू आर गेटिंग आर डॉट तो सारे वेरिएशंस यहाँ पे भी आ जाएंगे ना. इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे भी आर आर ही बना पा रहे हैं. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव सिमेट्रिकल अल्केन एज द मेजर प्रोडक्ट. दूसरी चीज पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन. तो यहाँ पर देखो वी आर गोइंग टू हैव दो तरीके से देख सकते हैं. मैंने एक तरीका बताया था कि वी आर गोइंग टू कंज्यूम एच प्लस कंज्यूम हो रहा है तो वी आर इंक्रीजिंग द पीएच, है ना. या फिर दूसरा यहाँ देखो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओ एच माइनस. यहाँ जो ये बुक वाला डायरेक्टली उठा के मैंने दिया है, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओ एच माइनस प्रोड्यूस हो रहा है तो पीएच बढ़ रहा है ना. एंड दैट्स व्हाई वी कैन हैव टू थिंग्स. एक तो जब पूछता है ये प्रोडक्ट एट कैथोड क्या है, प्रोडक्ट एट एनोड क्या है, तो वी आर गोइंग टू से प्रोडक्ट एट कैथोड अगर पूछ रहा है तो एक तो ये H2 मिल रहा है, H2 गैस है. अब वो H प्लस का जो कंजम्पशन हुआ है ना जिससे H2 बना है, तो ऑब्वियसली वाटर का H प्लस जाएगा तो OH माइनस विल बी रिलीज, है ना. तो वी कैन ऑल्सो से NaOH भी बन सकता है. वी कैन से दैट ऑल्सो. बट मेजर प्रोडक्ट अगर कैथोड का प्रोडक्ट थ्रू रिडक्शन जो बन रहा है दैट इज H2. दैट्स वन पार्ट. दूसरा पार्ट अगर प्रोडक्ट एट एनोड पूछ रहा है, इफ इट इज आस्किंग यू प्रोडक्ट एट एनोड क्या बन रहा है, तो एक तो ये बन रहा है जो हम लोगों ने बोला आर आर बन रहा है. दूसरा CO2 भी प्रोड्यूस हुआ है ना, ये तो इस मैकेनिज्म में भी दिख रहा है. CO2 इज बीइंग प्रोड्यूस, दैट इज अनदर. एंड like I told you RCOOR dot will be a byproduct, है ना. But like I told you we have got many possibilities जो हम लोगों ने उस रिएक्शन में कवर किया था. That is another part. So overall if I have to cover 2 points, 2 basic points. First thing, this is also a method good for only symmetrical alkane. And second thing, in this case pH of the solution is increasing because of consumption of H plus or production of OH minus, है ना. So we can say due to consumption of H plus or प्रोडक्शन ऑफ OH माइनस. दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको. एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? अब इसमें भी देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक जस्ट करके दिखा देता हूं मैं. मान लो अगर पूछे प्रोडक्ट बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस,
एंड इफ आई गिव यू फर्स्ट वन इज, मान लो मैंने दे दिया CS3, पहले तो एक सिंपल वाला देख लेते हैं, CS3COO Na+ एक्वस, यहाँ से क्या क्या मिलेगा। सेकेंड इज, इफ आई गिव यू यहाँ से क्या मिलेगा। नाउ इफ आई गिव यू थर्ड वन इज, इतने से यूल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक और दे देता हूँ। फर्स्ट में बताओ। देखो यहाँ पर इसका डॉट बनता तो उससे यहाँ पे डॉट आ जाता था ना, इसका डॉट आ गया तो विल बी गेटिंग CS3 बॉन्डेड विद CS3 है ना, प्लस CO2 प्लस H2 है ना, ये सब तो आता ही आता था। दैट इज वन पार्ट। यहाँ पे देखो डॉट यहाँ पे आने वाला है ना, तो डॉट यहाँ पे आएगा तो विल बी कंबाइनिंग दीज टू रिंग्स है ना, ऐसा दो रिंग कनेक्ट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक, प्लस CO2 प्लस H2O, ये सब H2 तो आएगा ही। ओके, दैट्स वन पार्ट। now यहाँ पे विल बी गेटिंग dot over here and dot over here, and that's how what is going to happen, इंटरमोलिकुलर तो बनेगा बट प्रेफर्ड प्रोडक्ट विल बी दिस वन है ना। तो यहां से देखो अल्कीन भी बन सकता है। सिमिलरली यहां से वी आर गोइंग टू गेट दिस वन डॉट ओवर हेयर एंड डॉट ओवर हेयर। अभी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के थ्रू, तो लाइक आई टोल्ड यू ना, उर्ज रिएक्शन में जितने वेरिएशंस कवर किए ना वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे विल बी गेटिंग दिस एंड देन अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज दिस, सॉरी, dot here and dot here, and that's why final product will be benzene. Is it okay? तो ऐसा कोई भी वेरिएशन, जो भी वेरिएशन ओरिजिन में किया था R डॉट बनने के बाद की जितनी स्टोरीज उधर कवर की थी वो सब यहाँ भी वैलिड हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पे R डॉट बनने वाला है। एनी डाउट? चलो, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू एंड इट। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन से भी वी कैन गेट अल्केन, बट विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेशल केस ऑल्सो वेयर अल्काइन विल बी गिविंग यू ओनली अल्कीन, नॉट इट विल नॉट कम अप टू अल्केन। तो उसके स्पेशल रिएजेंट्स की भी बात करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर बाकी सारे प्रोसेस जो है जिसके थ्रू अल्केन बनाते हैं उसकी बात करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट अल्केन का रिएक्शन। उसमें से एक रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट वाज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में कर दिया, तो रिवाइज दैट पार्ट फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म इटसेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट अगेन, है ना। आई विल बी मेंशनिंग इट कि हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, ओके, लेट्स क्लोज इट। कहीं डाउट्स है नोट्स में तो रुक जाओगे।